السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہماری عبادتوں کا تنہا مستحق ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، جو ہم سبوں کا خالق، مالک اور رازق ہے اور معبود حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے ہمارا آپ اس پاک بزم اور مجلس کے اندر موجود ہے، جہاں اللہ رب العالمین کی کتاب کلام قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر بیان کیا جائے گا، اور یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے خصوصی انعامات میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس مصروفیت اور مشغولیت سے بھری زندگی میں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اور آپ اس کی کتاب کے لیے جمع اور اکٹھا ہو رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھی خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے اور اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 65 سے 65 ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عالمین تو ہم سبوں کے حاضری کو قبول فرما لیں، اللہ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی تو توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 65 قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر مطلق ہیں کہ تمہارے اوپر اپنا عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں بھڑا دے اور تم آپس میں جھگڑا کر بیٹھے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تو آپ دیکھیں کہ کیسے ہم اپنی آیات و نشانیوں کو پھیر پھیر کر گھما گھما کر بیان کرتے ہیں، لعلکم یفقہون، تاکہ لوگ سمجھدار ہو جائے، سمجھ جائیں۔ آیت مذکور کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی ایک قوت یعنی طاقت جس کو کہتے ہیں اور اپنے ایک اختیار کا تذکرہ کیا۔ وہ قوت کیا اللہ تعالیٰ کی؟ وہ ہے عذاب الہی، اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے اندر جو بھی احکامات بیان ہوئے اور جو محرمات یعنی وہ چیزیں جو ہمیں کرنا ہے حلال چیز، وہ چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی ہے حرام چیز، قرآن مجید کے اندر جب ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ دو چیزیں اور جڑ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، جن کاموں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے یعنی نیکیاں حلال چیزیں، اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کا ثواب ہے۔ نمبر دو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس کام کو کرنے سے عذاب ہے۔ دونوں چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان دونوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں اپنے عذاب کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا قل، نبی اب کہہ دیجیے، نبی کے زبان ہی اللہ نے بلوایا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے قل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، قل کا مطلب ہوتا ہے امر کا صیغہ ہے، اللہ حکم ذرا کہہ دیجیے، فرما دیجیے، بول دیجیے۔ اب کس سے اللہ کہہ رہا ہے؟ اپنے پیغمبر سے۔ جو یہاں پہ اشارہ ہے قل نبی کہہ دیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امر جو ہے حاضر پر دلالت کرتا ہے،
अमर का जो मामला होता है हाजिर पे, गायब पर नहीं, या कोई है नहीं, किससे कहे पानी ला दो, है ना, एक गिलास पानी ला, किससे कहे, कोई नहीं। तो अमर का सेगा हमेशा हाजिर पर दलालत करता है। अमर मतलब हुक्म, हुक्म किसे देंगे, जो सामने कोई होगा उसी को देंगे। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। क्या कहा कि नबी अब कह दीजिए कि वो कादिर, अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है, इस बात पर अल्लाह ताला कादिर है। किस बात पर, इस बात पर कि अला अय्यबसा अलैकुम अज़ाबन, कि वो तुम्हारे ऊपर अजाब भेज दे। अजाब क्या है, भेज दे। अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है। अब अजाब की कैफियत क्या, मिल हो के तुम चाहे दोपहर से अजाब भेज दे, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब भी बादल घिरता था, काला हो जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पनाह तलब करते थे। सहाबा पूछते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है, क्या माजरा है कि आप देखते हैं कि बादल घिर गया, पूरा काला हो गया है, तो आप अल्लाह से पनाह मांग रहे, क्यों? तो कहते थे कि मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता कि उसके पीछे, यानी बादल के पीछे अल्लाह का कितना बड़ा अज़ाब है। मौसम साफ है, समझ में आता है, लेकिन जब बादल घिर जाता है तो बादल तूफान की शक्ल इख्तियार करेगा, कि सैलाब की शक्ल इख्तियार करेगा, कि बिजली गिर जाएगा, या कौन सी दूसरी अजाब आ जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन ऐसे माहौल को, जैसे कभी माहौल है, अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि अल्लाह कोई अजाब ना दिलाए ऊपर से, क्यों अल्लाह इस बात पर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से अजाब दे दे, और मिन तहती अर्जुलिकुम, और इस बात पर भी कादिर अल्लाह ताला तुम्हारे नीचे से, रिजिल कहते हैं अरबी के अंदर पाँव को, जो पाँव होता है इसको फुट कहा जाता है, इसको अरबी के अंदर रिजिल कहते हैं। रजुल कहेंगे तो आदमी को कहेंगे, हाज रजुल, ये आदमी है, रा पे जेल देंगे जिसको पाँव कहते हैं। या तुम्हारे पाँव के नीचे से अल्लाह अजाब दे दे, जमीन को धंसा दे, जमीन फट जाए, है ना। कोई जरूरी है कि हम मैदान में रहेंगे तो मैदान फट जाएगी, घर के अंदर घर फट सकता है। अल्लाह का अजाब जो है किस शक्ल में आएगा, अल्लाह ने उस शक्ल बयान किया। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से अजाब दे दे, इस बात पर कादिर तुम्हारे पाँव के नीचे से अजाब दे दे। एक दो सूरत हुई, एक और तीसरी सूरत क्या है, और यल्बिसकुम शियअन, या तुमको ग्रोह में तकसीम कर, बांट दे ग्रोह में, तफरका डाल दिया आपस में। तो हम लोग चार लेके ग्रुप हो गए, चार बच्चे, चार आदमी इधर एक ग्रुप हो गए, पांच इधर ग्रुप हो गए, अल्लाह ग्रोह में तकसीम कर, यानी फूट डाल देगा, अल्लाह फूट डाल देगा हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक में। ये भी अल्लाह का अज़ाब है। और ऐसा होता है दुनिया के अंदर कि जो कभी हमारे बहुत खास हुआ करते थे, हमारे बहुत बड़े दुश्मन, ये अल्लाह ने फूट डाल दिया आपस में। क्यों? अजाब का एक तरीका है। वो आज हमारे बहुत खून के प्यासे हैं, हमसे इंतकाम लेना चाहते हैं। कभी हमारे साथ रहते थे, उठते थे, बैठते थे, हम उनके घर जाते थे, वो हमारे घर आते थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। आज वो हमारे खिलाफ हैं और हमारे बारे में देखना तो दूर की बात, सुनना नहीं चाहते। अल्लाह ने कहा कि औजल बेसकुम शियान, देखिए एक लफ्ज़ आता है ना शिया, शिया की बात आती है तो हम समझते हैं कि एक फिरके का नाम है शिया, होता है एक शिया फिरका। असल में शिया का वर्ड टू वर्ड तर्जुमा होता है, लफ्जी माने जिसे कहते हैं, वो होता है जमात की, ग्रोह की। अल्लाह कह रहा है कि तुमको ग्रोहों में बांट देगा, वयुजी का बात तुम बात, और आपस में एक दूसरे को लड़ाई का मजा चखाएंगे, आपस में भिड़ जाएंगे। हम आप देख लीजिए, भाई भाई से लड़ रहा है, सगा खून का प्यासा है, सगा जो एक माँ से पैदा हुआ है, एक माँ से हम लोग भाई हैं, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, दोनों आरजुए कर रहे हैं, तमन्नाएं कर रहे हैं कि कैसे वो बिला जाए, मर जाए, कोई अजाब आ जाए, कुछ हो जाए उसको। ऐसा कभी सुना आपने? भाई भाई के का जो मामला है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जुबान में लुकनत थी। एक दो लोग पढ़ते हैं, रब्बी इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, अल्लाह मेरी जुबान में लुकनत है। लिसान मतलब जुबान को कहते हैं, उर्दू में इसमें होता है लिसानियात, है ना, लिसानी वो वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, या अल्लाह मेरी जुबान में लुकनत है। दुआ मांगी थी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं कोई बात बोलता हूँ साफ नहीं बोल पाता हूँ, सामने वाला समझ नहीं पाता। तो अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को भेजा उनके भाई को। हारून अलैहिस्सलाम न सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे बल्कि ट्रांसलेटर थे, तर्जुमानी करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम कोई बात कहते तो उसको हारून अलैहिस्सलाम साफ लफ्जों में उनके कौम से कहते थे। देखिए भाई का रिश्ता क्या होता है कि अल्लाह ने तर्जुमानी के तौर पर उन्हीं में से किसी को नहीं बनाया कि मूसा तेरे कौम में से किसी को भी चुन ले। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह मेरे ज़ुबान की लुकनत है, कोई बात साफ नहीं बोल पाते। अल्लाह ने देखा कि एक आदमी की जुबान को कौन बेहतर समझ सकता है, उसके भाई से बेहतर कोई नहीं समझ सकता।
क्योंकि हम जब कोई बात कहेंगे सलाम तो सिर्फ हमारी कोई बात नहीं, कोई जज्बात होंगे, हमारे अहवाल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भाई के रिश्ते को कितना पाक बनाया कि अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल करते हुए हारून अलैहिस्सलाम को भेज दिया। उनके अपने सगे भाई थे और अपने भाई की तर्जुमानी करते थे। आज वो सगा है भाई, लेकिन मोहब्बत नहीं। बहुत ज्यादा आज के जमाने में समझ लीजिए कि भाइयों का अगर रिश्ता है तो कुल मिलाकर 10 साल, क्योंकि जब तक भाई होश में आते हैं 10 साल तक, तो 10 साल छोड़ दीजिए, 10 से 20 साल जोड़िए, 20 साल में निकाह कर लेंगे, निकाह का मतलब होना ही है, मामला खराब होना है। आज कोई भी भाइयों का रिश्ता है आज के जमाने में सिर्फ 10 साल बस। बचपन से 10 साल तो होश ही नहीं है, हम क्या किए। जब होश आया तो ठीक हो गए हम लोग, आपस में मिलने जुलने, एक दूसरे की तकलीफ को सुनना समझना, मदद करना। और जब 20 साल 22 साल में शादियां हो गई तो अब खत्म हो गया। तो एक भाई का रिश्ता सिर्फ 10 साल, मतलब सिर्फ 10 साल, सिर्फ 10 साल। और उसी रिश्ते को हम लोगों ने कितना खराब किया हुआ है। अहवाल नहीं समझते, जज्बात नहीं समझते। और देखिए यहाँ पे एक नुकता याद रखें, लेकिन अल्लाह ने जो यहाँ बयान किया कि तुम लोग आपस में हम भिड़ा देंगे ग्रोहों में, तो हम ये ना समझे कि आपस में भिड़ने की वजह से दोस्ताना ताल्लुकात में आपस में अल्लाह भिड़ा देगा। अल्लाह ताला ने बता दिया, इशारा मोमिन के लिए काफी होता है। अल्लाह कहीं भी तफरका डाल सकता है। मियां बीवी में डाल देगा अल्लाह तफरका, भाई आप गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह को अजाब देना है जिस तरीके से थे, जिंदगी खराब हो जाएगी हमारी। बच्चों में डाल देगा, बच्चे बाप की इज्जत नहीं करेंगे। अल्लाह कैसे बेटा दे सकता है। देखिए हमने भाई के लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि ये रिश्ता जब मजबूत रहता है ना, तो देखेंगे कि अहलिया भी सही रहती है, बच्चे भी सही रहते हैं, क्योंकि भाई ठीक है आपस में। और इनकी मजबूती परिवार पर डिपेंड करती है। इसीलिए कोई आफत आने वाली होती है तो इस मजबूती के सामने टकरा कर चूर चूर हो जाती है। ये दोनों सही है। इनमें से एक भी तबका अगर गड़बड़ हुआ तो हाँ, घर के हालात हम में से सब कोई जानता है कि आज हालात कैसे हैं। अब चलिए कोर्ट कचहरी अदालतों में अपने सगों का केस ज्यादा है, अपने सगों का केस ज्यादा है, जो कभी साथ में खेले पले बड़े खाए पिए, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, यहाँ तक कि मरने पर मिट्टी नहीं दे रहे। मर तो गया, कहानी खत्म हो गया। भाई जिंदा रहता है कोई आदमी तो इंतकाम की आग भड़कती रहती है, मर गया तो वो दुनिया से चला गया, उसमें लोग मिट्टी देने नहीं जा रहे। इतना इंतकाम भरा हुआ, आग भरा हुआ है, जलन, हसद, गुस्सा, है ना। क्यों इंतकाल करके, अच्छा वो मर गया, खबर मिल रहा भाई आपका भाई का, अच्छा वो मर गया। ये गैर भी नहीं कहते, गैर भी कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहते अच्छा वो मर गया, अल्लाह ताला ने बोझ को कम कर दिया जमीन के ऊपर से। ये हालत क्यों बिगड़ गई। अल्लाह का तो ये हुक्म नहीं था, नबी का ये हुक्म नहीं था। ये भी अजाब की एक शक्ल है जो अल्लाह ने यहाँ पर बयान किया कि तुम इसे बाज को लड़ाई का मजा को युजी को, ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वो युजी का, ये उर्दू में कहा जाता है जायका, वही लफ्ज है। जायका मतलब क्या होता है, मजा, टेस्ट। वयुजी को, अल्लाह मजा चखाएगा लड़ाई का, झगड़ा का। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम भाई भाई लड़ रहे हैं या अपने लड़ रहे हैं, खून लड़ रहे हैं अपने में, तो इसका मतलब है कि अल्लाह का एक अजाब है। तो कुछ गलतियां हमसे हुई है, गुनाह हमसे हुए। हम लोग आमतौर पर अजाब को कैसे भांपते हैं, जैसे पिछले कौमों के ऊपर हुआ, चीख का आवाज अजाब आया, बस्ती को पलट दिया गया, वो अजाब आया। नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर सैलाब का अजाब आया, आसमान फट गई, वो अजाब। हम लोग इसको अजाब समझते हैं, लेकिन जो चीजें हमारी जिंदगी में हो रही है इसको हम नहीं समझते, अजाब से ताबीर नहीं करते, करने की जरूरत है। अल्लाह ने यहाँ बयान किया। अभी भी अल्लाह ने कहा उन्जुर कईफ़ नुसर्रिफ़ुल आयात, देखो कैसे हम अपनी आयात को घुमा घुमा के फैला फैला के इधर उधर करके बयान करते हैं। अल्लाह ने इसलिए कहा कि कुरान का बहुत अंदाज है, बहुत तरह का अंदाज है। कभी कुरान मोहब्बत वाली अल्फाज इस्तेमाल करता है, नरमी जिसको कहते हैं, कभी सख्ती वाला है और कभी अजाब वाला है। तो अल्लाह ने कहा कईफ़ नुसर्रिफ़ुल आयात, देखिए कैसे हम आयात को फेर फेर कर, मतलब घुमा घुमा कर बयान करते हैं अपनी निशानियों को। क्यों बयान करते हैं, लअल्लहुम यफ़क़हून, ताकि लोग समझ जाए। अंदाजे बयां बदलने का मतलब क्या है, समझाना कि बात जो है आसानी से और बहुत इत्मीनान से समझ में आ जाए कि अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है। उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 66 में कहा वकज़्ज़बा बिही कौमुका, और ए नबी आपकी कौम ने इसको झुटलाया। बिही मतलब इसको, इससे मुराद दो चीजें, या तो इस कुरान को झुटलाया या तो अल्लाह के अजाब को झुटलाया। हक जो जमीर का सिगा है, जमीर इशारा है दो चीजों की तरफ। अल्लाह ने कहा पैगंबर से कि आपकी कौम ने वकज़्ज़बा बिही कौमुका, आपकी कौम ने इसको झुटलाया, यानी जो अजाब का तस्करा हो रहा है ना, आपकी कौम ने झुटला दिया, मतलब सीरियस नहीं हुए।
सीरियस नहीं हुए। और इस तरीके से मिलती जुलती चीज हमारे साथ भी है। अल्लाह ताला ने इस कुरान का हुक्म न जाने कितने सालों से दिया है, जब जब आँख खोले होश में आए ये अहकामात सुन रहे हैं, लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने हालात पर गौर करें तो हमारे आमाल वो हिसाब के नहीं है जैसे अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है। हम अपनी जिंदगी में 24 घंटे में मात्र 5% नेक अमल करते हैं। 95% हमारे अमाल जो है नेकियों से खाली है। मैं ये नहीं कहता कि बुराई, मैं नहीं कहता हम 95% बुराई करते हैं, नेकी से खाली है। क्योंकि दीन के अंदर मामलात में कुछ चीज़ें ऐसी जो ऑटोमेटिक उसमें शामिल हो जाती है। जैसे किसी पर जुल्म हो रहा है, हम खामोश हैं, तो हम क्या समझ रहे हैं कि हमें किसी बीच में नहीं पड़ना है। लेकिन शरीयत कहती है कि जुल्म पर खामोशी इख्तियार करना भी एक जुल्म की शक्ल है, एक जुल्म की शक्ल है। हम समझ रहे कि सबसे अच्छा तरीका है कि बीच में नहीं जाना है, चुप रहना है। हमने चुप रहकर अपने आप पर, अपने ऊपर अज़ाब इलाही को मुस्तहिक ठहरा दिया। चुप रहने पर, सिर्फ चुप रहने पर। और जितने अजाब आप आया हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए कि खामोशी इख्तियार की गई जुल्म के ऊपर, उसका मामला हम खुद में जाए। शरीयत का कानून नहीं है, शरीयत का ये हुक्म नहीं है कि आपको अल्लाह ने हमको इसलिए नहीं भेजा है कि आपके साथ जब मामला आएगा तो आप आवाज बुलंद करेंगे, दोस्तों के साथ होगा तो, दूसरों के साथ होगा तो, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है सिरमी जी की, कि सही मुस्लिम की रिवायत है कि अगर बुराई को जब देखो तो सबसे पहले किससे रोकना है? अपने हाथ से, अपने हाथ से रोकना। क्यों अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह कभी भूल कहते हैं कि मामला तो उसका है ही नहीं, वो क्यों रोकेगा? क्यों अल्लाह के उसने काम लोगों से? आप ये कहते कि तुम्हारा मामला रहेगा तो अपने हाथ से पहले बुराई को रोको, लेकिन ऐसा हमारे नबी ने कहा। हमारे नबी ने कहा कि जब बुराई को देखो तो अपने हाथ से रोको। जब इसकी ताकत ना हो हाथ से रोकने की, लड़ने वाले या बुराई जो कर रहे हैं वो बदनी एतबार से बहुत मजबूत है, बहुत कमजोर है। हम अगर जाते हैं बोलने के लिए तो हो सकता है कि हम मार दें, है ना। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे नबी ने कहा कि अपनी जुबान से रोको, भाई ऐसा ना करें, भाई ऐसा ना करें, उनकी गलत हो रहा है, क्या कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लीजिए, सुलह कर लीजिए, इसी में हम सब की भलाई है। जुबान से रोके। अब ऐसा लगता है कि नहीं जुबान से बोलने भी जाएंगे तो हमको नुकसान पहुंच सकता है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा तरीका बतलाया कि दिल में बुरा जाना। यहाँ तक हदीस हम बयान करते लेकिन उसका मेन हिस्सा में छोड़ देते। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिल में बुरा जाना ये कमजोर ईमान की पहचान। अगर किसी बुराई को देख कर फिर दिल में बुरा जान रहा है इसका मतलब हमारा ईमान कमजोर है, और इस बात को मानेंगे भी नहीं कमजोर ईमान वाले, तो मानने को तैयार है कि हमारा ईमान कमजोर है। तो यही तो हो रहा है। हमने दीन के अंदर क्या किया, बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं। कुर्बानी से डरते हैं हम कुर्बानी नहीं देना चाहते, हम तकलीफ नहीं उठाना चाहते, हम सिर्फ आराम चाहते हैं, सब यही चाहता है। तो फिर कैसे हम आगे बढ़े? हम दुनिया की तारीख पढ़ लें, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ लें, हिजरत का वाक़या पढ़ लें, हम सब क्या था इसमें। किसी भी सहाबी रसूल ने कुर्बानी से अपने आप को पीछे नहीं हटाया, चाहे जान की कुर्बानी हो चाहे माल की कुर्बानी। देखिए कुर्बानी सिर्फ जान की नहीं होती। अभी ये 10 चल रहा है, इसमें किसको जान देने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें भी कुर्बानी है, वक्त की कुर्बानी है ना। सारा अपना काम छोड़कर आए कि नहीं आए? माल की कुर्बानी है कि नहीं? दर्श हो कैसे रहा है? हम कुछ खा रहे पीछे रहे बैठ रहे, कहाँ से आ रहे सब? ये भी कुर्बानी है। हम नहीं मानते अलग बात, ये भी कुर्बानी है। तो कुर्बानी देने का जज्बा हमें हमारे अंदर खत्म हो चुका है। और कोई भी कौम, चाहे मुसलमान कौम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी कौम कुर्बानी देने से आगे बढ़ती है। जिस कौम में कुर्बानी का जज्बा होता है वो कौम बहुत जल्द तरक्की करती है, और जिस कौम का जज्बा नहीं पाया जाएगा वो कौम देखिए पिछड़ जाएगी, पीछे हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों का तज़किरा किया जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कि हमने अपना एक कानून बनाया हुआ है, दूसरों का मामला क्यों। तो अब क्या होता है, देखिए प्रैक्टिकल बात है। अब तक नहीं ना हुआ उसका मामला हम क्यों जाए, उसका मामला क्यों जाए, अब तो हम सबका मामला है। अब क्या है? अब तो अल्लाह के बहुत बड़ा दावा है। अब हम क्या करें? अब हम किसके पास जाए? सबके साथ ये मामला है, अब हम क्या करें? हमने कल तक यही फॉर्मूला पे अमल किया, उसका है नहीं जाएंगे, मेरा होगा तो देखा जाएगा, उसका हम नहीं जाएंगे। आज अल्लाह ने जुल्म के ऊपर आवाज ना उठाने की वजह से हम सबको उस कैटेगरी में खड़ा कर दिया, हम सब उसकी चपेट में हैं। अब क्या करें हम? कौन है जो हमारी सुनेगा? कल तक हमने किसी की नहीं सुनी, तो आज क्यों हमारी कोई सुनेगा? सवाल यह है कि कल जिस पर जुल्म हुआ हमने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो आज हम पे जुल्म होगा तो कौन सुनेगा हमारी बात? सीधी सी बात है।
जब हम किसी की नहीं सुनेंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। बात एक ही है कि ये रास्ता हमने खोला है, ये मौका हमने दिया है। अब बात समझ रहे कि बोलने का मकसद क्या है। आज ऐसे हालात हो गए कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं सुनने वाला। ये हालात पहले भी थे, लेकिन हमने नहीं समझा बात। हमने नहीं समझा कि उसके घर का मैटर है, उसके घर के मामलात हैं, सुधारने की जगह हमने बिगाड़ दिया। हम लोगों ने और बिगाड़ दिया मामलात को। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मामलात को बिगाड़ दिया। अब क्या करें? लेकिन घबराने की बात नहीं। कुरान सच्चा है, कुरान के अल्फाज सच्चे हैं, हक हैं। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम ना करो, डरो मत, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन रहे। कुरान एक ही हुक्म है, हम मोमिन रहेंगे चाहे कोई भी साल चले, 26 चले, 27 चले, 28 चले, 50 चले, 100 चले, अल्लाह हमको सुप्रू करेगा। शर्त क्या है? मोमिन। मोमिन कौन होता है? कि वही फॉर्मूला याद रखिएगा। मोमिन वो नहीं होता है कि जुल्म देख कर भाग जाएगा, उसको मोमिन नहीं कहा जाता है। मोमिन उसको कहा जाता है जो अपनी जिंदगी को किताब और सुन्नत के मुताबिक ढाल दे, उसको मोमिन कहा जाता है। अल्लाह ने कहा कि नबी आपकी कौम ने इसको झुटला दिया। किसको? अल्लाह के अजाब को। हम लोगों ने भी झुटलाया अल्लाह के अजाब को। सीरियस नहीं हुआ है क्या? ऐसा भी होता है। हम लोग अल्लाह के अजाब को कहाँ देख रहे मालूम है? आखिरत में देख रहे हैं कि अजाब वहां होगा। अब भूल जा रहे हैं कि दुनिया में भी अजाब आया। हम आखिरत से ताबीर कर रहे हैं। अच्छा, मरने के बाद जाएंगे, हशर का मैदान कायम होगा, सवाल जवाब होंगे, दाहिने हाथ में जिसको नाम मिलेगा जन्नत में चला जाएगा, बाएं हाथ में मिलेगा। अब वो अजाब, वहां अजाब देख रहे हैं। अब दुनिया के जो अजाब थी, जो कौम नूह के ऊपर आई, जो कौम लूत के ऊपर आई, जो कौम हुद के ऊपर आई, किस कौम पर नहीं आई अजाब? अल्लाह का। बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह का अजाब आया कि नहीं आया? दुनिया के अंदर भी अल्लाह का अजाब है। ये हिस्ट्री हम भूल चुके हैं। आज जो अपने आप पे आ रहा है तब आज अंदाजा हो रहा है कि अल्लाह का कुरान बहक है, अल्लाह की बात सच है। इसीलिए ये सारी चीजें हैं, अपने अहवाल का जायजा लें कि हम जो गलतियां की हैं उससे सीखें, तो खताएं हुई उससे अपने आप को संभाले कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। अल्लाह ने कहा वहुवल हक, है नबी आपके कौम ने उसको झुटला लेके हक है। आपकी कौम ने अजाब इलाही को झुटला दिया, लेकिन ये तो हक है। देखिए अल्लाह कह रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आज दर्स में जो आयतें आ रही हैं बिल्कुल सेट हो जा रही है आज के माहौल में। अल्लाह ने कहा कि ए नबी इन लोगों ने आपके अजाब को, इस चीज को झुटला दिया, यानी जो अजाब के ऊपर जिक्र हुआ कि ऊपर से अजाब दे देंगे, नीचे से दे देंगे, तफरका डाल देंगे, आपस में लड़ा देंगे, आपस में लड़ो, अपने में लड़ते रहो। तो अल्लाह ने कहा कि उसको झुटला दिया अपनी कौम ने। वह हक, लेकिन ये हक है, अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह का अजाब आएगा अगर वो गुनाह, वो गलतियां हमसे भी सरजद होगी। कुल नबी कह दीजिए लस्तु अलैकुम बेवकील, मैं तुम्हारे ऊपर निगरान नहीं हूं। नबी ने कह दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहलवाया, कुल नबी कहिए, कह दीजिए अपनी कौम के लोगों से लस्तु अलैकुम बेवकील, देखो मेरा काम है तुमको अच्छी चीजें बता देना, बुराई के बारे में बता देना। अच्छी चीज करोगे जन्नत मिलेगी, बुराई करोगे दोजख मिलेगा। लेकिन हम निगरान बन के नहीं बैठेंगे, चेक नहीं करेंगे, आप करते रहो। अल्लाह के नबी की जिंदगी में ऐसे मामलात हुए, कई ऐसे अफराद थे जो मुशरिकीन मक्का थे, बाद में मुसलमान फिर कुफर में लौट गए, फिर कुफर में लौट गए। तो आप निगरान नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है। निगरान होती तो उसको पकड़ के लाते, बेटे वापस क्यों चले गए, फिर लौट गए कुफर में। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आयत नंबर 67 अल्लाह ने कहा लिकुल्ली नबइन मुस्तकर, हर खबर का एक वक्त होता है। लिकुल्ली नबइन मुस्तकर, हर खबर का एक वक्त होता है। सब तालुम तुम करीब जान लोगे, तुम करीब जान लोगे। अरे जान गए, अब तक तो हम मजाक ही में थे। हाँ अल्लाह का अजाब आएगा, फिर कुरान की किस्से कहानी की तरह तो लगे रहते, हम सीरियस हुए नहीं आज तक। हमने कुरान की एक एक आयत को मजाक में तुम करीब जान लोगे। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, हर खबर के एक वक्त मुकर्रर है। ये वक्त मुकर्रर था हम लोगों के लिए। अगर हमारे अमाल दुरुस्त हो जाते तो वक्त को अल्लाह और बढ़ा देता है। शायद हमारी नस्ल इसको ना देख पाती पूरे वक्त पे, और हम पार हो जाते। उसके बाद क्या और कौन जानता है? हमसे पहले जो दुनिया से चले गए उनको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम भी नहीं जानते। अल्लाह ने कहा लिकुल्ली नबइन मुस्तकर, हर वक्त का, हर खबर की वक्त मुकर्रर था, मुकर्रर है क्या होने वाला है। सौफ तालमुन करीब तुम जान लोगे। उसका आयत नंबर 68 व इज़ा राइतल लज़ीना यख़ुज़ूना फ़ी आयातिना, और जब देखे कि जो लोग हमारी आयत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐब जुई कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ नुक्स निकाल रहे हैं, फ़ारिज़ अन्हुम, तो आप ऐसे लोगों से किनारा कश,
فعارف عنہم، ایسے لوگوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں۔ جب دیکھیے کہ جو لوگ ہماری آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو بھی ہو کوئی بھی ہو، اللہ نے کہا چپ چاپ ان سے ہٹ جائے، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حتی یخوض فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں پھنس جائے، یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں پھنس جائے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو یہ چیز بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھے، یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھے۔ یہاں دیکھیں ایک لفظ قرآن میں اکثر استعمال ہوتا ہے قوم الظالمین، ظالم قوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم کا جو تعلق ہے، ریلیشن جس کو کہا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ مسلمان ظالم نہیں ہوتا یا ظالم کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہوتا۔ آپ نے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ظالم قوم، جیسے مسلمان ہیں، ایک طبقہ نماز پڑھتا ہے اور ایک طبقہ نماز نہیں پڑھتا، دونوں مسلمان ہیں، تو جو نماز پڑھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ نمازی بولتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے اس کو کیا بولتے ہیں؟ بے نمازی۔ اب اگر ظالم قوم کو ہم مسلم قوم سے ہٹا کر دیکھیں گے تو پھر ہم کو بے نمازی کو مسلم قوم سے ہٹا کر دیکھنا ہوگا۔ بس میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ دو طبقہ ہے، ایک نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، دونوں مسلمان ہیں۔ جو نماز پڑھتے تو نمازی کہتے ہیں، جو نہیں پڑھتے تو بے نمازی بولتے ہیں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو دونوں تو مسلمان ہے کہ نہیں دونوں؟ اسی طریقے سے مسلم قوم کے اندر بھی دو طبقے ہو سکتے ہیں، ایک وہ قوم جو مسلمان ہے لیکن ظلم کرتا ہے، اور جو مسلمان ہے لیکن ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت کے سمجھنے میں کئی مرتبہ غلطیاں ہوئی ہیں مسلمانوں سے۔ جب بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ ظالم قوم کو سے محبت نہیں کرتا، اللہ ظالم قوموں کو پسند نہیں کرتا، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ظالم قوم سے مراد کافر ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر جو مسلمان ہے وہی ظلم نہیں کر رہے، کافی ظلم کر رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ستا رہا ہے۔ تو ظلم کو اللہ نے قوم سے نہیں جوڑا ہے، ظلم کو اللہ نے ظالم کو عمل سے جوڑا ہے۔ ہم قوم سے جوڑتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ظالم قوم سے مراد کافر قوم ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں، جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، چاہے قوم سے چاہے غیر قوم سے، کوئی بھی ہو، اپنے ہو یا بیگانے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ اگر وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان اس چیز کو بھلا دے، کس چیز کو بھلا دے؟ جیسے مان لیجیے کہ اللہ نے کہا کہ جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، فالٹ نکالتے ہیں، قرآن کی آیت میں فالٹ نکالتے ہیں، تو آپ ان سے کیا کریے؟ کنارہ کشی کرتے ہیں، سائڈ رکھ دیں۔ ابھی کل ہی خطبے میں عمر فاروق کی سیرت کے اوپر آپ لوگ گئے تھے جوان کریں، تو کل خطبے ہی میں یہ بات گزری کہ ایک آدمی عمر فاروق کے زمانے میں تھا، ان کے دور خلافت میں، سبیق بن اصل نام تھا اس کا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ قرآن کی متشابہ جو آیات ہوتی ہیں اس پر زیادہ دھیان دیتا تھا۔ متشابہ آیات کسے کہتے ہیں؟ الف لام میم، اس کا معنی کیا ہے؟ الف لام میم کا معنی، الف لام میم کے معنی حامیم یاسین، ان چیزوں کے بارے میں تمام مفسرین نے کہا کہ واللہ اعلم بمرادہ، اس کا مراد اللہ جانتا ہے۔ الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے بتایا ہی نہیں، اللہ نے نہیں بتایا، اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں اس کو پڑھنے پر ثواب ہے، میننگ کوئی نہیں جانتا۔ آپ جتنی تفسیر کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے، اگر کسی ترجمہ کیا ہے تو جھوٹا ہے۔ اب سبیق بن اصل کیا کرتا تھا عمر فاروق کے زمانے میں؟ اسی طرح کی آیت کا مطالعہ کرتا تھا، کہاں کہاں متشابہ آیات ہے۔ قرآن میں متشابہ آیت کے بارے میں کہا کرنا کہ نہ کوئی نہیں، بات عمر فاروق کو پتہ چل گئی، کہاں تو خبر نہیں، امیر المومنین تھے، حکمراں تھے، ایسی سی بات ہے، تو اس کو بلوایا انہوں نے، بلا کے لاؤ، بولو عمر بلایا، اس کو پیش کیا، وہ گیا اور اس کو کوڑے سے پٹوایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوڑے سے کوڑا کھاتا گیا، عمر فاروق اب سمجھ میں آ گیا اس کا معنی کیا ہوگا، اب دوبارہ نہیں کریں گے، ہم کو اب معنی سے پتہ چل گیا کیوں آپ نے پٹوایا، کیوں؟ وہ ایک فتنہ تھا، وہ ایک فتنہ تھا۔ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنا جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور اس طریقے سے آپ اکیلے رہیں گے، پھر 2 ہو جائیں گے، پھر 10 ہو جائیں گے، پھر 20 ہو جائیں گے، اور وہ فتنہ بن جائے گا۔ ہم لوگ پورے ڈیلیگیشن چلیں گے، مولانا کے پاس بتانا ہوگا، آپ بتائیے اسلام کا معنی کیا ہے، ہم کہیں گے بھائی اللہ کے رسول نہیں، یہاں لکھا ہوا ہے، ایک تفسیر کتاب میں لکھا ہے اس کا معنی، آپ عالم نہیں ہیں، آپ کو حق نہیں ہے، آپ کو حق نہیں ہے بولنے کا، فتنے کی شکل بن جائے گی۔ تو اس کو جب پٹوا دیے تو جس کے دل میں بھی ہلکا سا خیال آیا ہوا کہ چلو کل ہم بھی تلاش کریں گے، وہ ٹھیک ہو گیا، نہیں ٹھیک ہے، ایسے لڑا جاتا ہے فتنوں سے۔
वही चीज़ है यहाँ पर वही चीज़ है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, इसी तरह की चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। जब पता चल गया कि एक आदमी है जो कुरान की आयत के अंदर आयत हमारी आयत में ऐप जोई करता है, तो साइलेंटली उसे हट गई। यही तरीका है। कुरान के अंदर नुक्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, कैसे मोमिन हो सकता है, कैसे वो नेक इंसान हो सकता है? पहले समझा दीजिए, ना समझिए तो चुपचाप जो है किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए। अल्लाह ने कहा कि अगर शैतान भुला दे, किस बात को भुला दे कि ये कुरान में ऐप जोई करता है। अगर हम भूल गए तो जैसी याद है बाद जिक्र फला तक मत बैठो, बाद जिक्र याद आने के बाद जैसी याद आ गया, अरे तो कुरान ऐसे तो करता है, बस इसके महफिल में आए सलाम अलैकुम चलते अपनी बात ये इंशाल्लाह फौरन निकले वहां से। क्यों निकले? अल्लाह ने कहा माल कौम जालिम कौम है, कब उस पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए कोई गारंटी नहीं। आप रहेंगे, आप भी उसमें फंस जाएंगे। जालिम कौम के साथ रहने का मतलब हुआ कि जब उस पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कोई टाइमिंग देकर, इन्विटेशन देकर नहीं आएगा, फला तारीख फला तारीख में बजे रात में इस टाइम पे आएगा। अल्लाह तब उसको अपने अज़ाब में गिरफ्तार कर ले, बेहतर है। इसलिए अल्लाह कह रहा है मत बैठो जालिम कौम के साथ, मत बैठो। अज़ाब आएगा ना तो अज़ाब ये कोई मतलब क्या है कि कोई तीर नहीं का नाम लेके उसी पे लगेगा, सारे लोगों को चपेटने वो अज़ाब। तो ऐसे लोगों से अपने दामन बचाने की जरूरत है जो अल्लाह ताला की आयत का इस्तेज़ा करते मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद आयत नंबर 69, वमा अलल लज़ीना यत्तक़ूना मिन हिसाबि मिन शैइन, हाँ मगर ये जो मुत्तकी लोग हैं उनको इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो मुत्तकी होते हैं तक़वा इख्तियार करते हैं, ये कभी भी उस मजलिस में बैठते हैं जो जिसमें अल्लाह के आयत का इनकार किया जाता है, तो मुत्तकी क्या करते हैं, वलाकिन ज़िक्र लअल्लहुम यत्तक़ून, वहीं पर अल्लाह का जिक्र शुरू करते ताकि वो मुत्तकी। ये भी देखिए बैठने की एक शकल है, ये दूसरी आयत के अंदर आया। एक शुरूत में बैठ सकते हैं। एक आदमी पता चल गया कुरान में नुक्स निकालता है, इसमें नुक्स निकालता है, दीन में नुक्स निकालता है, शरीयत में नुक्स निकालता है, तो उसकी मजलिस में जब बैठे तो उसकी इस्लाह करें। उसके मजलिस में जाने का मतलब क्या है, उसकी इस्लाह करे ताकि वो भी मुत्तकी हो जाए, ताकि उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा हो जाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 70 सूरह नाम के अंदर बयान किया, वज़रिल लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन, और आप उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने अपने दीन को मजाक बना कर, खेल कूद, लहव व लइब उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, खेल कूद कहते हैं, लइब कहते हैं खेल को, तमाशा को। आप उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जिन लोगों ने अपने दीन को खेल कूद बना दिया। खेल कूद, आप देखिए खेल कूद का लफ्ज़ अल्लाह ने कहा। आगे एक और लफ्ज़ देख लें, वह गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की ज़िंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया, दुनिया की ज़िंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया। अब इसमें देखिए कुछ मिसालें हैं जिससे समझने में आसान है, और ये मिसाल यहाँ पर भी डिस्कशन होते रहता है। दुनिया की ज़िंदगी को जिन्होंने खेल कूद दिया, दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ने क्यों दिया? क्या कभी हम लोगों ने अपने आप से पूछा कि अल्लाह ने हमको दुनिया में क्यों पैदा किया? पूछना चाहिए। क्या जरूरत है हमको अल्लाह को यहाँ भेजने की? जब पूछेंगे तो बहुत तरह की सवालात सामने आएंगे, तो उसके जवाब नहीं। भाई कभी हम बैठे तन्हाई में सोचें कि दुनिया एक ज़माने से चल रही है, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चल रही है, ना जाने कितने हजार साल क्रोस करने के बाद हमें अल्लाह ने अब पैदा किया है ना। क्यों पैदा किया? सोचिए कभी, क्या लोग कम पड़ गए थे कि हमको आना पड़ गया, या कुछ मकसद होगा? जब मकसद होगा तो हम तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे कि अल्लाह ने क्यों पैदा किया। तो सूरह जारियात की आयत में लिखा, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने लियअबुदून इबादत के लिए पैदा किया। तो हमें जवाब मिलेगा कि अच्छा हमारी पैदाइश, इसकी पैदाइश, उनकी पैदाइश, उनकी पैदाइश, सबकी पैदाइश अल्लाह की इबादत के लिए हुई है। पहले सवाल का हल हो गया। अब दूसरा सवाल, क्या हम कर रहे हैं वो काम जिस चीज़ के अल्लाह ने पैदा किया? पूछना पड़े, क्या वो काम कर रहे हैं? जब अल्लाह ने पैदा किया क्या वो काम कर रहे हैं? आप देख लिए हम लोगों के हालात मुसलमानों के, जैसे हम आलिम हैं, हर घर में कोई एक हाफिज को तालीम होता है ना। अभी रास्ते में तो अभी हाफिज साहब को दिखला है। अब मेजोरिटी मुसलमानों की देखिए, ईशा के अजान हो गए, अरे हम तब गई नमाज पढ़ने। अच्छा आप तो स्पेशल लिख दी गई है, ऐसी होता है घर में। चलिए तभी इमाम साहब अब नमाज का टाइम हो गया, चलिए फिर मिलते हैं। अरे आप कहाँ गए? ये हाल हो गया हम लोगों का। यानी हम समझ रहे कि वो हाफिज और इमाम को नमाज पे भेज कर हम सब हज कर लेंगे, हम हज कर लेंगे। अरे आप कहाँ जाएंगे? अच्छा हाफिज 2-4 वक्त नमाज घर में छोड़ दे रहे हैं, घर का आलिम हाफिज है,
अरे आपकी बड़ी कंप्लेन आ रही है, तो इसीलिए पढ़ाए थे। अरे हाँ, आप कब जाइएगा, आपका लेटर कहाँ है जिसमें अल्लाह ने स्पेशल लिख के दिया जिब्रील के जरिया कि आप नमाज मत पढ़िए, आज नमाज मत पढ़िए। आप जानते हैं मुसलमानों के हालात, बातें बहुत है, रात खत्म हो जाएगी, दिन शुरू हो जाएगा। मस्जिद जाकर देखिए, जो बच्चे पढ़ने में तेज तर्रार हैं, नौजवानों की बात हो रही है, जो बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो मस्जिद नजर नहीं आते। अब तलाश करके देखेंगे, 1% नहीं, ऐसे बच्चे मस्जिद में नहीं है। मेरा बेटा मस्जिद में जाएगा, तैयारी करवा रहे हैं, लाखों रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो मस्जिद में जाएगा। आज अल्लाह कैसे हालात ला दिए, रोना चाह रहे, आंख में आंसू नहीं, ऐसा लगता है आंसू सूख गए, डर के लग हमारे नींद नहीं आ रही हम लोगों की। अब क्या होगा, क्या फरमान आ जाएगा। जो बच्चे पढ़ने में तेज तर्रार है वो कौम की खिदमत कर सकते हैं, अल्लाह ने उनको ज़हीन बनाया। मैं कभी इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आप फलां स्कूल मत पढ़ाइए, फलां तालीम मत दीजिए, वो कौम के काम आ सकते हैं। ऐसे बच्चे किसी मस्जिद में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि माँ बाप को लग रहा है कि मस्जिद में जाएगा तो बिगड़ जाएगा या टाइम वेस्ट हो जाएगा। या अल्लाह अल्लाह के बंदे, मस्जिद में टाइम वेस्ट हो जाएगा तो टाइम अच्छी जगह खर्च कहाँ हो रहा है बताइए। मस्जिद के अलावा कौन सी जगह है, कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह के रसूल भूल गए बताना, नौजुबिल्ला अल्लाह के नबी भूल गए बताना कि मस्जिद के अलावा ये जगह है जहाँ पर आप टाइम सर्व करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। बताइए कौन सी जगह है? नहीं मिलेंगे। हमारे बच्चे, जो नौजवान बच्चे हमारे भाई हैं जो बहुत तेज तर्रार है पढ़ने में, वो मस्जिद में नजर नहीं आते। और हर की बात अब जुम्मा में नजर नहीं आते, अब जुम्मा में भी नजर नहीं आते, अब नजर नहीं आ रहा। क्यों? हालात तो हमने बिगाड़े हैं अपने, आज तक फोकस नहीं किया हम लोगों ने। हमें ये लग रहा है कि नहीं, इसी को कामयाबी कहते हैं। इतना 1000 लाख खर्च कर रहे हैं, रात में हॉर्लिक्स है तो बॉर्नवीटा है, खाने पीने के हर तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ है। हम मस्जिद भेज कर टाइम बर्बाद करवा दें, का टाइम बर्बाद करवा दें। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी तलवार लटका दी है कि ना उगले जा रहा ना निकले जा रहा। जाए तो किसके पास जाए? सवाल ये कि अल्लाह को छोड़ कोई है ही नहीं। यही बात कल भी बताया जा रहा था, यही बात कल भी समझाया जा रहा था कि अल्लाह के अलावा कोई हमारा हामी मददगार नहीं है। लेकिन हम लोगों ने बहुत चीज़ को ईजी ले लिया। आज क्या हालात हो गए हमारे कि जो हमारे अच्छे बच्चे वो मस्जिद नहीं जाते हैं, इन्हीं के जो नमाज पढ़ते गंदे बच्चे हैं, यानी उनसे कौम का फायदा हो सकता है। जो पढ़ने में तेज है, तर्रार है, और ऐसी निशानियां है। लेकिन इसमें भी कुछ बच्चे हैं ऐसे जो कामयाब है दुनियावी एतबार से, हर एतबार से, वो भी जुड़े हुए दीन से माशाअल्लाह। आप इसी को देखिए, सब नौजवान जो इस दर्स के, इस दर्स में सिर्फ नौजवान है। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद है, सिर्फ नौजवान जुड़े हुए, तभी तो चल रहा है। नौजवानी असल है इस कौम की। अब हमारे मसाजिद ऐसे बच्चों से खाली है। क्यों? मुसलमानों ने मिजाज के अंदर ये पैदा कर दिया कि अगर हमारा ये बच्चा मस्जिद में जाएगा तो बिगड़ जाएगा। अरे मस्जिद में रिक्शा चलाने का बेटा भी जा रहा है, ठेले पर सब्जी बेचने वाला बच्चा भी जा रहा है, अजीब गंदा रहता है। हमारे घर में हैंड वाश का इस्तेमाल है, घर में घुसे तो हैंड वाश, निकले तो हैंड वाश, ये वो। अब वो मस्जिद में बच्चे खेलने वाले, होली खेलते, ये खेलते हैं, वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चा बोला खड़ा, अजीब नहीं लगेगा? थोड़ा सा थोड़ा अजीब लगेगा। और इस अजीब के दौरान जैसा अजीब हो गया, कहीं भी रहिए खतरा है। अब मस्जिद छोड़ दीजिए, अब जाइए जहाँ रहते वहीं रहिए। लेकिन हो सकता है इंशाअल्लाह अब मसाजिद भरेंगे, अब मसाजिद भरेंगे इंशाअल्लाह। ये भी अल्लाह ताला जो करता है, अल्लाह के हर फैसले में हिकमत होती है कि नहीं? और मोमिन इस चीज़ से राजी रहता है। ये बड़ा अफसोस होता है। मेरे खुद सपना है कि अल्लाह जब तक हयात है, मुझे भी हम कब तक जिंदा रहेंगे, सपना यही है कि जब हम इमामत करें तो मेरे पीछे MBBS डॉक्टर भी हो, IAS ऑफिसर भी हो, जो मेरे पीछे नमाज पढ़े। लेकिन लगता नहीं कि इस दुनिया में मुमकिन होगा। आखिरत में अल्लाह दे दे, लेकिन यहाँ नहीं लगता है। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ने कहा कि अगर शैतान बुला दे, अगर वज़रिल लज़ीना तख़ज़्ज़ू दीनहुम, और उन लोगों से आप किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए जो अपने दीन को खेल कूद बनाएंगे, वो गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उन्हें दुनियावी ज़िंदगी में धोखे में रखा हुआ है। सही बात है, दुनिया की ज़िंदगी को जो इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं, बल्कि हमारा उठना बैठना सोना जागना सब दुनिया के लिए, सब दुनिया के लिए। आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं बताइए? आखिरत के लिए कौन सा काम है? ये भी एक उम्मत का अलमिया है, ये भी एक अलमिया है कि आखिरत के लिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन एक ऐसी ज़िंदगी के लिए हम कर रहे हैं जो ज़िंदगी अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है। बस अल्लाह ने बतौर आजमाइश पैदा कर दिया कि आप वहाँ जाइए, मेहनत कीजिए, तकलीफ उठाइए, आइए अल्लाह की बारगाह में
تو اللہ کو جنت میں لے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس قرآن کے ذریعہ ان لوگوں کو نصیحت کیجیے جنہوں نے اپنے اعمال کے عوض اپنے آپ کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے بات سمجھ آئی؟ دعوت و تبلیغ کے اصول کو یہاں اللہ نے بیان کیا کہ آپ جب کسی کی تبلیغ کرے تو اللہ کے قرآن سے کریں، قرآن سے سمجھائیے۔ قرآن یہ ایک معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا۔ لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، بتائیے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی مددگار اور سفارشی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر دنیا کی ساری دولت خرچ کر دے، لا یؤخذ منہا، اسے لیا نہیں جائے گا، لا یؤخذ منہا، ایکسیپٹ نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ دنیا میں ہم برائی کر دی، موت کا وقت آ گیا، اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے غلطیاں کی، بلکہ بے شمار غلطیاں کی۔ ہر آدمی اپنے عمل سے بخوبی واقف ہے، موت کے وقت سب سمجھ میں آ جاتا ہے، وقت تھا، مہلت تھی، موقع تھا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اب ہم وصیت کرتے ہیں اپنے خاندان والوں سے، بچوں والوں سے کہ دیکھو میری موت کا وقت قریب ہے، شاید میں نہ بچوں، بے پناہ خرچ کرنا، جو پیسہ میں نے چھوڑ کے دیا ہے، مدارس بنا دینا، مساجد بنا دینا، اللہ کا لا یؤخذ منہا، ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ آپ تو عذاب دیکھ کر پگھل رہے ہیں، ابھی آپ کو تو پہلے پگھلنا چاہیے تھا، معلوم تھا آپ کو سب، آپ پگھلے ہی نہیں، یہ سوچ کر کیا ہے یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آخری وقت کیا کھات مسلمان ہوں گے، اللہ کہہ رہا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال نے ان کو پھنسا دیا۔ کوئی کسی کو نہیں پھنساتا ہے، ہمارے اعمال نے ہم کو پھنسا دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دوسروں کے لیے جب جو لوگ گڈھا کھودتے ہیں خود اسی گڈھے میں گر جاتے ہیں۔ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں کہ ہم دوسروں کو تباہ کرنے کی سوچ رہے تھے، اللہ نے ہم کو اسی گڈھے میں گرا دیا، ہم نے اپنے پر دھیان نہیں دیا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کیا ہے، کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کے لیے۔ شراب یشرب مطلب عربی کے اندر پینا، اسی سے شراب کا لگ جاتا ہے، کیونکہ شراب لکوڈ میں ہوتا ہے تو اس کو پیا ہی جاتا ہے نا، اسی کو شراب کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے، جو انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اس کی وجہ سے۔ درس آج کا یہیں پر مکمل ہوا۔ سورہ انعام آیت نمبر 77۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب عطا فرما۔ اللہ ہمارے دل میں خوف الہی کو پیدا فرما، اور اس خوف کے علاوہ کوئی خوف باقی نہ ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ آن لائن ہیں آپ لوگ آف لائن ہو جائیں۔